ટીવી ઉપરથી સીડી તું મને કરી દઈશ. મારી બે દોઢ દોઢ મિનિટ ભરેલી પડી છે, 1.5 મિનિટ. એના ઉપરથી એક સીડી મને કરી દઈએ આવ્યા પછી. ફોન હતો શું કઈ મને કે ગાડી લઈને આવો તમે કે છે મારી એની બાઈક મેં કીધું ના ભાઈ ના બાઈક પણ લઈને આવે આવો આવો આમ ભરવા ભાઈ અમારું ઉતાર દેવો જોઈએ ને નહીં આવે તો ચાલશે એ તો છે જ અહીંયા ઉભો છું તો કરવા દે લાલ્લુ આવતો રે ને હાથમાં તું એ ને અહીંયા બેઠો છે એ જગ્યાએ અમારી આનો લઈ લે આ જો ગુરુજી જો આ ગુરુજી ગુરુજી અરે 1 મિનિટ તો ઝૂમિંગ થઈ ગયું યાર સવારના ખા ખા કરે છે ખા ખા કરે છે બદામ કતરી જો પાછું ખાવાનું બદામ કતરી બરફી બરફી બરફી. मारो और फिर तू ले ये सब जगह पे यही क्यों आता है सुबह सुबह तू नहीं देखना है शर्माई गया
जाओ 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 आकर जाओ। सारे लोग वो मैं वॉच टीवी ओह मामा मामा तो ब्लैक में ब्लैक एंड व्हाइट आवे।
એ જરા હરખું ઉતારજે ના એ આ પાણી પીતો ત્યારે નો ઉતાર્યું બાકી નથી Zero five four. This Shatabdi from Amritsar to Haridwar will arrive shortly on platform number 4. કરેલા આવ ચાલો કેડા કેડા સાઈડમાં Suitcase equals memory. Guy, हमारा मान लीजिए तो कम करेंगे तो कैसे करेंगे જલ્દી પાડો ને મારું હરખું પાડજો બટાકું આવે એવું ભગવાનને ખબર બધું આપવાનું
જમી લો. સામાન કરતા આપી દો. ઓકે ચાલો. અમે મળાય ને કાલ આજે નહીં, કાલે સવારે નાસ્તામાં, કાલ સાંજે હતા ને શું તમ
अरे खेलता नहीं कोई। એ ચડ્ડો સરખો કરો ઓય ચડ્ડાનો ફોટો લેજે હા ચડ્ડો જો એમનો ચડ્ડો ભગવાનને જોઈને હસતા હતા सही बात। अबे जमावट कर बनाए थे। શું પાણી કર્યું ગાડી ચાલી ગાડી ધોતા હોય જઈએ તો अच्छी बात। હે પેલા આવતા હવે નહીં હા ગાડી ધોતા હોય ત્યારના જૂના છો તમે હા તો મંજીભાઈ ये बात एक बात, दूसरी बात ये कि जो आपका सर्विस सामान है उसका बिल आइटम 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 नंबर तो भेजे होगा आइटम में क्या क्या रेट लगे होंगे हैं? हाँ टंकी के लिए भी करो कच्चा बिल मेरे को भेजो आप जरा रेट लगा कर ठीक है ना सामान तो आया हुआ है मेरे पास सब सामान का वो आइटम में क्या क्या रेट लगा जरा बताना
નિર્માણ થઈ રહ્યું છે ઘર બને છે. હરિદ્વારમાં જે ઓછામાં જે ધ્યાન મંદિર છે ને એ ભાઈ સાચા ત્યાં ખુલે છે નહીં જોયું તમે સેમ પેલું જ છે જ્યાં ભગવાન એ લઈ લ્યો જીતુભાઈ હવે ના લાવતા બે માં તો ઇનફ છે એમ એ પૂરું સારું છે બસ કનેક્ટિવિટી રહે કોની ના પણ આ તો સળિયા છે એટલે કનેક્ટિવિટી કેમ છે? વચ્ચેના પોર્શન આમાં મુવમેન્ટ નો રસ્તો રહે છે હા તો પેલી વાર જવા દેવું છે ને થોડું પેલી બાજુ નાખો બસ આવી ગયું લો અવાર જવાનું થઈ ગયો રસ્તો એક લઈ લ્યો જે ઓલો ખાચો છે ને. ક્યાં જરૂર ચોથાની સામાન ભાઈ ચોથાની માણસો આવે તો જરૂર પડે ને. હે લે તો પોતરી દેતો નહીં તમે ઉપર આવી ગયા. આમ બી ભગવાન છે ये बोले ઉપર કીધા હિન્દી વાળો બોલો કોઈ દિક્કત तो गुजराती बन गए. किसी को प्रश्न पूछना हो गंगा का पानी ऐसा है ना सब प्रश्न गिर जाते माधुपुर है तो प्रश्न ही प्रश्न है प्रश्न ही प्रश्न ભગવાન કાલે આપણે કહીએ ને કે ભાવના હોય એટલે ઈચ્છા હોય તો એ ભાવના હોય અને હારે છું તમારી એવી જો તમને પ્રતીતિ હોય તો એ પ્રેમ તો એક પ્રયોગ આજ કર્યો ને હું ઘણી કોશિશ કરું હોશમાં રહેવાની કામ તેમ પણ ફગી જાઉં પણ મેં આજે એવો પ્રયોગ કર્યો કે તમે તો મારી હારે છો જ મને એ પ્રતીતિ છે તો મેં મારા સાક્ષી થવાની જગ્યાએ તમને સાક્ષી બનાવી દીધા તો બધું શાંત થઈ ગયું આ સાચું હોય हाँ सर ये भक्ति मार्ग છે જ્ઞાન માર્ગમાં હું આવે ભક્તિ માર્ગમાં તું આવે ભાવ ભાવ એટલે ભક્તિ માર્ગ ઇમોશન
The main thing is presence. जैसे कि आप लोग सांस ले रहे हैं, तो सांस किसका है? ये हवा किसकी है? मैं सांस ले रहा हूँ, आप भी सांस ले रहे हैं। तो यहाँ से निकलते वहां जाते, वहां से निकलते वहां जाते, वहां से निकलते वहां जाते। तो सांस जो है वो 3 सेकंड के लिए ही अपना है, जो हम अपना माने तो। और 3 सेकंड के लिए क्या अधिकार जमाने? फिर भी हम कहते हैं कि मेरा सांस और तेरा सांस। अगर ये बात ख्याल में आ जाए कि 3 सेकंड के लिए अधिकार भी क्या है, सांस चल रही है, मेरा तेरा तो, हाँ ये मेरा घर ये तेरा घर ये ठीक है। स्वामी जी कहे ये मेरा आश्रम वो उनका आश्रम ये ठीक है। अगर मेरा तेरा जैसा है ही नहीं, फिर भी है। कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ साल के लिए बस। तो सांस के भीतर जो प्राण चल रहा है वो तो इससे भी गहरे है। प्राण की धारा जो है वो उसमें भी है। जैसे साग सब्जी में प्राण है, तो हम खाते हैं तो वहां से प्राण अलग होके भीतर आ जाते हैं। तो हमारा प्राण कहाँ है? इधर उधर सब प्राण बह रहा है। तो सांस की बात है, ऐसे इंप्रेशन फूड तो कुछ सेकंड के लिए है। कुछ सेकंड क्या, 1000 में पाओ। ये लोग कहते हैं 1 सेकंड में 30, उसको हमारे यहाँ तन मात्रा कहते हैं। किसकी तन मात्रा? बस किसका सौंदर्य यहाँ सौंदर्य दिखाई पड़ता है, तो किसका सौंदर्य? अगर मैंने पेंटिंग बनाई तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा पेंटिंग है, ये उसका है। और वही तो कलाकार और कारीगर और परमात्मा के बीच फासला हो जाता है, मैं का ही। जो वहां है वो उनका है, यहाँ भी जो बना है वो भी उनका ही है। ठीक है, हाँ, हमारे द्वारा निर्मित हुआ है। तो इतना अहंकार हम ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर लेने गए तो फंस गए। और आखिरी बात जो आती है वो प्रेजेंस की। प्रेजेंस है, सब में वही समाया। ये जो है वो प्रेजेंस है, ओमनी प्रेजेंस। सत्ता मात्र, हमारे यहाँ उसको सत्ता कहते थे। उर्दू में उसको हाजरा हजूर, हाजर, हाजिर हो गई बस। तो मैं जब कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, तो मेरा शरीर साथ नहीं है। मेरा विचार आपके साथ होगा या न होगा, मेरी कल्पना आपके साथ होगी नहीं होगी, मगर मेरी प्रेजेंस आपकी प्रेजेंस के साथ ही है। ये फैक्ट है, आश्वासन नहीं है। इट इज ओनली रियलिटी, सबकी प्रेजेंस है। अगर आप प्रेजेंस सेंस करें तो वहां मैं ही हूँ। और मैं प्रेजेंस सेंस करूँ तो वहां वो ही है, क्योंकि प्रेजेंस मेरी नहीं है, आपकी नहीं, उनकी है। तो ध्यान की गहराई में जब उतरना हो तो प्रेजेंस का ही सेंसिंग करना है बस। जितनी इंटेंस हम उनकी सेंसिंग करेंगे उतनी गहरे हम चलेंगे। एक ढंग से सरल सा है, अगर समझने गए तो फंस गई है। कल्पना में, विचार में, आर्ग्यूमेंट में, सब तरह से फंस जाओ।
ફટાકડા ફૂટે સાદી છે પતરા. ખસેડે છે પતરું. ફટાકડા તો અવાજ આવો આવે ને. ક્યારેક અમારે અહીંયા ભૂલાવા પડી જાય. ઘણી વાર એવું બધું ઘંટ વાગતો હોય ને તો નીલકંઠો ઘંટ વાગે અને થોડી વાર પછી એક ઘંટડી જેવું કઈ વાગે પછી ખ્યાલ આવ્યો આ કેનો તો કે આઈસ્ક્રીમ વાળા વિવેક રાખવો પડે કેનો ઘંટ વાગે. ये आवाज आ रही है कौवे की आवाज है मगर कौवा जो है वो हमारी बुद्धि ने हमारा माइंड ने उनको डिफाइन करती है. अगर कौवा निकल जाए तो आवाज रह जाती है और आवाज निकल जाए तो वो रह जाता है. बस इतना फासला है हमारे और उनके बीच. यहाँ जो ने बस शब्द शब्द विचार कौवा 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 कौवा. श्री तावड़िया जी ने कहा है बहुत सिंपल कहा है. भिक्षु एम्प्टी द बोट. एम्प्टी जस्ट लेट गो. खाली कर. ओशो ने वही बात कही है वास्ट एम्प्टीनेस. एम्प्टी द बोट शेष रह जाते हैं वास्ट एम्प्टीनेस. गुजरात के भजन में कहते हैं शून्य शिखर पर. गुजराती भजन. मीरा कहते शून्य महल में दिया ना बारे ले. कबीर कहते हैं जो भी कहते हैं. ખાલી કરીએ છે ને એના કરતા 10 ગણા ઝડપે બધું ભરાઈ જાય છે. હા તો તેની કૃપા. ભરાતું હોય તો ઠીક, ભરાઈ જાય. खाली करना नहीं है फिर भी खाली करने का थोड़ा प्रयत्न जरूरी है. इतना विचार क्यों आते हैं तो हम भविष्य की चिंता करते हैं कल क्या होगा. बस कल आ गया बीच में. अगर ये ख्याल में आ जाए तो कल को छोड़ दो तो उनके साथ बहुत कुछ खाली हो जाएगी बहुत कुछ. और जो बीत चुकी सो बीत चुकी. अब उनकी याद सताते क्यों. उनको जाने दो बस. अब सामने जो आए उनको खाली नहीं करना है उनमें डूब जाना. जब से यहाँ की तारीख तय हुई थी
सारे दिन सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। और कुछ पता ठिकाना नहीं था कि वहां जाके क्या करना है, कौन आएगा। बस जब चिंता पकड़ लेती तो उनको याद कर लेता। अगर उनका विस्मरण हो जाता तो चिंता सामने आ जाती। बस इस ढंग से एक महीना मैंने निकाला, इधर उधर इधर उधर। और यहाँ आके देखा तो कुछ हो रहा है। कुछ भी तय नहीं था, और शायद आप लोगों को भी कुछ तय नहीं था। आप लोगों ने मुझ पर शायद छोड़ा होगा। हमें भी चिंता सता दी, भगवान है ना। तो मैंने उन पर छोड़ दिया, चेक रीडायरेक्ट कर दिया। हमने छोड़ा मगर भाया छोड़ा। हाँ, शुरू शुरू में शादी के लिए आवश्यकता रहती है गौर महाराज को। प्लानिंग करना जरूरी है, आयोजन। चिंता जो है वो गलत है। क्या गन्ने खाते हैं ना, तो उसमें से रस लेते हैं, वो प्लानिंग है। और जो कुचा है वो चिंता है। हाँ, सामने है, कल क्या करना है हमने प्लान कर लिया, बस रस ले लिया। प्लानिंग का भी एक बड़ा मजा आता है। और चिंता जो है वो कोरी खाई से, क्या हिंदी में कहते हैं, काट खा देती है। हाँ, काट लेती, काट खाती है। काट खाती है। किसी को कहना है कुछ, कोई सजेशन देना है।
એવું એક પ્લેસ બનાવવું જોઈએ જ્યાં જેને ધ્યાન કરવા બેસવું હોય. આમ તો બધું છે જ રહેવાનું ને બધું, પણ એક પ્લેસ એવું હોય કે જ્યારે એમ જેમ ભેગી કીધું ને કે ધ્યાનમાં પ્રેઝન્સમાં ડૂબવું છે એવું કોઈ હોય ત્યાં 5-10 માણસને જ્યારે બી જેને મન થાય ત્યાં બેસીને ધ્યાન કરી શકે. એવું કંઈક કરવું છે આયોજન કે એક કોઈ પ્લેસ કે ખુલ્લું બરાબર. આ સ્થાન એ માટે જ બનાવેલું છે. આજે આ તો ઓચિંતા આટલા બધા ભેગા થઈ ગયા. આપણે માધવપુરની અંદર રાણના ઝાડ નીચે અને બુદ્ધા હોલ એ બે સ્થાન અલિપ્ત રાખ્યા છે. કોઈ નાસ્તો પાણી કે કઈ ન કરે, પણ જ્યારે શિબિર આવે ને ત્યારે પછી સુવાનું ને બધાય વરસાદ ટાણે પછી. પણ હવે અહીંયા ઠેક ઠેકાણે કંઈક એવા ધ્યાનના નાના નાના પોકેટ એ હવે બનશે. હવે થોડી જગાના આપણે માહિતગાર થઈ જાય, સ્વામીજી સાથે થોડો પરિચય થઈ જાય અને એની બધી તૈયારી છે. એટલે એક આપણું કોઈ એવું ગ્રુપ તૈયાર થાય 5-7 જણનું, એટલે પછી જગા થઈને એનું બધું કરે તો પછી થોડીક પ્રવૃત્તિ શેષ જીવન આ ખાતે ગાળી દઈએ, જેને આર્થિક સમસ્યા ન હોય. થોડો થોડો સમય વર્ષમાં 15 મહિનો દી હાજર કાઢે. આ તો એક જस्ट ए लिटिल स्पेसिमेन काम हो रहा है और किस ढंग से होना चाहिए, बस इस ढंग से. जो हम काम कर रहे हैं ने वो प्रेजेंस लाने के लिए, मगर माया का प्रभाव इतना है कि हम काम को महत्व देते हैं, प्रेजेंस को महत्व नहीं देते, क्योंकि प्रेजेंस का मूल्य नहीं पकड़ में आता. अगर डायरेक्ट प्रेजेंस पकड़ में आ गई तो उसको राजयोग कहते हैं, और काम करने से प्रेजेंस आती है तो कर्मयोग कहते हैं. मगर प्रेजेंस जो है वो लक्ष्य है. तो कुछ लोग प्रेजेंस का लक्ष्य नहीं समझते, तो वो काम किए जाते हैं तो उनका बोझ पड़ता है सिर पर कि ये मैंने किया. तो उन काम के साथ अटैच हो जाते, मैंने किया तो उनके क्यों बगाड़ दिया, और मैं करना चाहता तो उसमें उसने रोड़ा क्यों डाला. आप सबको ऐसे लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, या कोई लोग कहते हैं, शायद उनको ऐसा दिखाई पड़ता है. मैं शरीर हिला रहा हूँ, काम नहीं कर रहा. इधर से उधर कुछ शरीर को हिलाना डुलाना चाहिए.
तो जहाँ ऐसा लगे तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। दिन में जो श्रम करते हैं, तो दिन में श्रम करते हैं, इसके अंदर श्रम करते हुए मतलब इसका ख्याल ज्यादा रखना है कि भी भीतर प्रेजेंस रहे, बस। काम को गौण रखना है, हाँ, राइट उसको मुख्यता नहीं देनी। राइट। उसी को तो कर्म योग कहते हैं। तो श्रम के अंदर भी आपका दृष्टिकोण श्रम करवाने से कम और मुख्य अंदर प्रेजेंस रहने से ज्यादा है। अंदर प्रेजेंट रहे ये ज्यादा मुख्य लक्ष्य है, ज्यादा मुख्य लक्ष्य तो एक गुण है। वो गुण है। और मेरे साथ जो श्रम कर रहे हैं, तो मेरी थोड़ी सी जिम्मेवारी है कि उनको भी प्रेजेंस आ जाए। हाँ। में बहुत ऐसा लग जाए, हाँ। उस अटैच हो जाए, तो थोड़ा सा ख्याल, तो जो भी काम हो ऐसे बने और ऐसे बने, क्यों, बस काम करो और आनंद ले लो। जो आपने कहा कि अभी काम करते हुए प्रेजेंट में जाना ये है कर्मयोग, तो सीधा चला जाना ये हो गया राजयोग। हाँ, तो यानी कि श्रम का मतलब ये है कि अभी हमारी पात्रता कर्मयोग की है, राजयोग की नहीं है, तभी श्रम की आवश्यकता है। हमारी पात्रता की बात छोड़े, हम शरीर के साथ हमारा तादात्म्य है ना, हाँ। तो शरीर क्रिया करते हैं। हम्म। अगर शरीर के साथ तादात्म्य न हो और चित्त के साथ हमारे तादात्म्य हो, हाँ। तो राज्य। देखिए अभी तो हम बैठ के ये स्थिति लाना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं इसको? हाँ, शरीर भी चलाना है, और शरीर चला के बाद हमारा अटेंशन कहाँ चला जाता है, हमारी चित्त की वृत्ति कहाँ है, उसको लाइए प्रेजेंस में। जो काम श्रम करते हुए कर रहे हैं उसको बैठ के करें तो संभव है कि नहीं? हाँ, हो सकते हैं, ये सबकी अलग अलग। अलग अलग। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी पात्रता क्या है व्यक्तिगत? प्रेजेंस सेंस होगी तब समझना। प्रेजेंसनेस हो तो समझे। हाँ। अगर काम करते हुए ज्यादा बनती हो तो वो ज्यादा ठीक तो है, वो ज्यादा ठीक, अब बैठ के ज्यादा बनती है तो वो ज्यादा ठीक है। वो ज्यादा ठीक। वो करके देखना पड़ेगा। सोच के तो पता नहीं चलेगा। हाँ, करके देखना। उसमें भी शायद धोखा होता हो, ऐसा लगता है कई बार, कभी कभी धोखा लगता है तो कि वो ठीक है, कभी लगता है ये ठीक। माया महाठगिनी, हाँ, सब जगह सावधानी तो रखनी सावधानी से चाहिए। देखना पड़ेगा। बस, काम करने में आलस्य तो नहीं है, इसलिए इसको चाह रहा हूँ। काम करने में आलस्य तो चली जाएगी, मगर काम में हम इतना, डूब जाएंगे। हाँ, आइडेंटिफाइड इन्वॉल्व हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, तब वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। इन्वॉल्व होते हैं, मैंने देखा भाई, मैंने पहले काम किया तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें गुस्सा भी आता है, काम बिगड़ने पे बुरा भी लगता है। हाँ, बस काम बिगड़ गया। काम बिगड़ गया, मगर हम इससे ज्यादा बिगड़ गया, वो हाँ, देखना। वही होता है, बस हम ज्यादा बिगड़ जाते हैं। मेरे साथ तो यही हुआ जीवन, काम बिगड़ा कम, मैं ज्यादा बिगड़ गया। बस वही सावधानी रखना। गुस्सा आ जाता है दूसरे पे, क्या गलत कर दिया तो थोड़ा हम ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, मगर गाड़ी से ज्यादा नुकसान ड्राइवर को हो गया। ड्राइवर बचना चाहिए, गाड़ी तो ठीक बात। रिपेयर हो जाएगी। काम सुधर जाएंगे, मगर जो हमारे भीतर रिएक्शन आ गया, उसको ठीक करने में कुछ दिन लग जाएंगे। वर्तमान क्षण में रहना हमारी साधना से हो सकता है या प्रकृति की भी इच्छा चाहिए? हमारी हमारी साधना भी, साधना से हो सकता है। दोनों, मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा। प्रकृति ने सब कुछ प्रेजेंट कर दिया, सारा अस्तित्व प्रेजेंट है। ये सायं काल है, ये पेड़ पौधे है, ये सब इसी क्षण सब प्रकृति ही है, वो प्रेजेंट है। अब हमारी साधना ये है कि उनको रिस्पॉन्स देना। उसने तो भोजन परोस दिया, अब हम क्या करें? हम तो ऐसा सोचते कि वो भी मुंह में वो डाले। परोसना उनका काम है, माँ का काम।
खाना बच्चे का काम है। और कई बच्चे तो थूक डालते हैं। माँ परोसती भी है, खिलाती भी है, मगर बच्चे कभी कभी ऐसा होता है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। हम ऐसा बच्चा है। ओशो ने बहुत कुछ परोस दिया, वो प्रकृति की ही व्यवस्था थी। कृष्णमूर्ति, ओशो, तावड़िया जी, दीदी, सब कुछ। मगर हम ऐसे बच्चे हैं ने खाना ही नहीं चाहते। तो क्या करें। પ્રેઝન્સનો પુરાવો પ્રેઝન્સમાં આવી ગયા એનો પુરાવો બ્લિસફુલ ટેસ્ટ અંદર મજા ब्लिस, रिएक्शन फ्री स्टेट। अगर प्रेजेंस होगी तो रिएक्शन नहीं आएगा। और प्रेजेंस के साथ ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन, तो उनको दृष्टा साक्षी कहते हैं। और बिना ऑब्जर्वेशन जो हो तो प्रेजेंस सत्ता मात्र। જે આંખ બંધ કરીને બેસીએ ધ્યાન માટે ત્યારે આપણે જે ચિત્ત સાથેની જે વૃત્તિઓ જ્યાં જતી હોય, જોઈને પાછા લાવતા હોઈએ છીએ એ अभ्यास છે। तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। चित्त वहां बह गया, मैंने अटेंशन को खींच लिया अपने विल पावर से। बह गया, उनको कॉन्शियसनेस कहते, हमने देखा, बाद में हमने खींच लिया, वो विल। और चित्त वृत्ति, कॉन्शियसनेस, अटेंशन एंड विल, थ्री फंडामेंटल फैकल्टीज, उनके साथ कुछ न कुछ हम करते रहे, वही साधना। એને રાજયોગ કહે છે। वो राज्य। और वहां से आए और हमने सांस पर लगा दिया तो हठयोग बन गया। प्राण के साथ जो कुछ काम करते हैं उसको हठयोग कहते हैं, चित्त के साथ काम करते हैं तो उसको राज्य कहते हैं। पत्थर के साथ कोई मकान बनाता है तो उसको कारीगर कहते हैं, और पत्थर के साथ कोई शिल्प बनाता है तो उसको कलाकार कहते हैं। इतना फर्क है। तो रजा लेंगे। हाँ, चलो बात है। कल सुबह क्या करना है वो कुछ કોઈ સબ્જેક્ટ कोई सब्जेक्ट लेना है या हाँ। प्रश्न करना है? क्या સબ્જેક્ટ सब्जेक्ट ले? यस। કોની એક ઇંગ્લિશ બુક છે એના गीता 13वां अध्याय। यहाँ तो गीता भवन चल रहा है। રામ સુખદાસની ભૂમિ છે तो ठीक है, राम सुखदास जी को अंजलि में दूं 13वां अध्याय के। हाँ, उनको भावांजलि अर्पित करना। ના 13માંથી પેલું જ્ઞાન યોગ છે। एकदम शरीर कल से हम 13वां अध्याय शुरू करेंगे। राम सुखदास जी को प्रणाम करके याद करके। ठीक है, चलो। अब मेरा बोझ उतर गया। चलो ठीक।